Leadership to you as a whole is what, if you can describe it in a line? Leadership is all about, two or three things, which is you lead by example. You need to be a role model. Your decision making, a prompt and an accurate decision making is. When we talk about financial independence, do you think empowerment जो है वो इसकी awareness के बगैर हो सकती है? I think 97% of the women in Pakistan, or more than that, they don't know where to invest and how to go about it. The talent acquisition philosophy is all about behavioral based discussions and certain discussions which you have demonstrated in last 3 to 5 years. A lot of people are not very open या वो अपने लीडर के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते. So how do you build that trust with your employees? जो आपके एस्केलेटिंग एवेन्यूज़ हैं और फोरम्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम्स और पॉलिसीज बने चाहिए कि लोगों को पता हो कि मैंने जाना कहाँ है. यू कांट बी एम्पैथेटिक ऑल द टाइम बिकॉज रिजल्ट्स भी चाहिए होते हैं. योर एम्पैथी should not overwhelm the results. Thank you so much for being on the show, Mr. Hadil. कुछ सवाल, I think it's okay if we can be bilingual. जी जी बिल्कुल. ठीक थैंक है. यू वेरी मच. HR से related number one, I really wanted to ask you कि leadership styles अगर हम देखें तो it's very different with males and females. So HR के अंदर do you think women lead is much more conscious or the male? देखिए ओके मुश्किल सवाल है वैसे. So you need to understand the dynamics of every gender. So अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हर जेंडर के अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं. अगर ये कहना कि एक मर्द के अंदर भी एक नुस्वानियत होती है और जो कि विच इज़ अ फैक्ट. इसी तरह एक फीमेल के अंदर भी वॉरियर इंस्टिंक्ट्स होते हैं. एंड यू कैन आल्सो हैव सीन and witnessed and you have read in different books that they were the great warriors, even in the subcontinent, in the Arab world, and be it the Romans or the Ottomans and stuff. So ये कहना, so that's why जो philosophy है वो diversity की, वो equity पे आ चुकी हुई है. Perhaps equality पे नहीं है, because strengths and weaknesses जैसे होती हैं. So and inclusion is all about that. अब आते हैं आपका जो सवाल जो है लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ब्रेन अल्लाह ताला ने दिया इंसान को और अल्लाह ताला ने अप्रोचेस दी और एजुकेशन दी है. सो ये कहना कि वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द लीडरशिप ट्रेट्स इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. How about the way they approach, like when they are trying to conduct an interview, maybe the female can think from a slightly different perspective rather than the male. So I just wanted to ask. So दुनिया में ओके आपने अब रिक्रूटमेंट की तरफ बात कर दी है. दुनिया में जो टैलेंट एक्विजिशन फिलोसफीज हैं या approach towards assessing an individual or a candidate has transformed a lot, right? That means कि आप you don't go for digging out something, but you normally analyze the previous achievements, need to be biased, your conflict resolution or the relationship part of that, and the capacity of an individual. जब ये अभी 2-3-4 चीज़ों को evaluate करना start करती हैं, so वो जो पर्सनल बायसेस एंड लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है. दैट्स व्हाई द टैलेंट एक्विजिशन फिलॉसफी इज ऑल अबाउट behavioral based discussions and certain discussions which you have demonstrated in last 3 to 5 years. Having said that, उसमें stereotypes and biases जो है वो ख़त्म हो चुके हुए हैं. So चाहे वो मर्द कर रहा हो चाहे औरत कर रहा हो, fundamentals अगर आपके documented हैं to assess an individual, so वो उसकी personal likings and dislikings जो है वो ख़त्म हो जाती है. And approach towards assessing a person is also different. Yes, I do understand इंसान है, इंसान के back of mind कुछ likings and disliking चल रही होती हैं, but एतदाल पसंदी का यही और अदल इंसाफ का ये तकाजा है कि आप उन्हीं फंडामेंटल्स को साथ लेके चलें, उसी को मद्देनज़र रखें एंड देन एवैल्यूएट एन इंडिविजुअल. थैंक यू सो मच. मुझे बताएं कि लीडरशिप टू यू एज अ होल इज व्हाट, इफ यू कैन डिस्क्राइब इट इन अ लाइन. अच्छा,
ओके, ज़्यादा मैंने कोई किताबें लीडरशिप पे ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई हैं, बट लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट 2 or 3 थिंग्स, विच इज़ you lead by example. You need to be a role model. Your decision making, a prompt and accurate decision making, उसमें गलतियां भी होती हैं, गलतियां वही करता है जो काम करता है. Conflict resolution is also important, one of an important, so conflict needs to be addressed, cannot be put under the carpet. So आप का approach towards evaluating things और सबको साथ लेके जाना चलना टीम बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, that's your leadership. There are certain leaders in the world who we still think that those are leaders, but उनका आखिरत ख़राब हुई, and there were certain very low level और mediocre sort of a leaders, लेकिन उनके आगे जो है वो फ्यूचर अच्छा रहा और लोग आज भी याद रखते हैं. What I'm trying to say here is that लीडर वो नहीं होगा जो 15 दिन, 6 महीने, 2 महीने, साल, 3 साल कोई काम करे और वो ख़राब हो जाए और वो कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना डाल सके. बट लीडर नीड्स टू बी कंसिस्टेंट, नीड्स टू बी कोलैबोरेटिव, as I said earlier, and needs to take everybody on the same page for the result. So आपके पास resources हैं, आपके पास रिजल्ट आपने लेके आना है. सो द दरमियाना पार्ट इज योर रिलेशनशिप, एंड व्हेन योर रिलेशनशिप इज दैट, देन यू टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड. देयर विल बी सम चैलेंजेस. जैसे मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ, सुलह हुदैबिया वाज अ टेम्पररी डिफीट बट अ लॉन्ग टर्म विन फॉर द मुस्लिम्स. सो दैट्स योर लीडरशिप. डिसीजन मेकिंग के हवाले से अगर हम बात करें, समटाइम्स इट्स वेरी टफ फॉर अ लीडर टू मेक अ डिसीजन. हाउ डू यू टेक दिस? एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में आप होते हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. तो उसके हवाले से हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस एट टाइम्स? सी, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या है, डिसीजन आपने लिया, there's no shortcut to experience, frankly speaking. But when you have a more collaborative approach, you consult people, consult those people who are intelligent people and have a past experience. So अच्छा मिल जाता है आपको, solutions मिल जाते हैं. But मेरे ख्याल से डिसीजन लेने से डरना नहीं चाहिए, बेशक गलत भी हो जाए तो एटलीस्ट लिया तो सही ना. कल को आप रिग्रेट तो नहीं करके मैंने नहीं लिया तो क्या होता, perhaps what are the A's and the B's and the C's and the D's. Decision making is all about collaboration. It's about your instincts and stuff, and then evaluating the terrain and also evaluating the future impact. So सोचना वो आपके लिए important है. ठीक है. मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो एट टाइम्स ऐसा होता है दैट सम एम्प्लॉयज़ दे फील एज इफ दे आर अनहर्ड. तो एट टाइम्स अगेन comes over here is the conflicts, ठीक है, जो employees के बीच में हो जाते हैं and then they go to the upper management. How do you handle this challenge? So आपका सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन में people are unheard. मैं फिर वहीं पर आता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में इतना ट्रांसपेरेंट कल्चर होना चाहिए that you should have various forums to highlight your concerns. Your leadership needs to be developed or trained in the way that they should evaluate those concerns before reaching to a certain level. That means, as I said earlier, that the proper platforms needs to be there, and escalating forums to be needs to be there. So otherwise फिर आपके किसी किस्म यहाँ पे एक और एस्पेक्ट ये भी जो ये भी आ सकता है, because a lot of people are not very open, या वो अपने लीडर के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते. So how do you build that trust with your employees कि वो आपके साथ हर चीज़ शेयर कर सके? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जी, ट्रांसपेरेंसी और रेप्रिमांड का जब डर होता है ना, सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो इट्स वॉक द टॉक. तो लीडरशिप के पास अगर इस तरह के केसेस आएँ और जो बंदा वोकल हो और उसके केस को आपने हैंडल किया हो और यू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ इट, तो लोगों के ऑलरेडी जो है वो मोराल बढ़ जाता है टू एस्केलेट द मैटर. लोगों को ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसी आई हुई है कुछ अर्से पहले, एंटी हरासमेंट के लॉज आए हुए हैं और एंटी हरासमेंट की पॉलिसीज़ हैं टू हैव अ मोर इंक्लूसिव सॉर्ट ऑफ अ कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन. सो जब तक आप उसको कैस्केड नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में हैमर नहीं करेंगे और वक्तन फ़वक्तन उस पे रिफ्रेशर्स नहीं देंगे, तो लोगों को नहीं पता चलेगा मेरे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं.
हुकूमत का भी यहाँ पर कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन बनती है, बिकॉज हुकूमत के ने अच्छे लॉज बनाए हुए हैं, और अच्छे लॉज जो है वो कॉम्पिटेंट लीगल फोरम पे भी सुने जाएं. सो देयर आर वेरियस लेवल्स. तो कहने का मकसद ये है कि जो आपके एस्केलेटिंग एवेन्यूज़ हैं और फोरम्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम्स और पॉलिसीज़ बने चाहिए कि लोगों को पता हो कि मैंने जाना कहाँ है, और अगर लेट्स से यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो हुकूमत जो है वो मेरी सुनवाई करेगी. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्राइंग टू वर्क ऑन, लेकिन अभी भी वो उस लेवल तक नहीं आई हैं कि वो एक तरह प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन कर सके. सो व्हाई इज़ दैट सो? अच्छा, अगर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्लासरूम ट्रेनिंग की बात कर रही हैं? नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज़ एन एम्प्लॉय हु वांट्स टू ग्रो, तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल ही नीड्स टू डू अ कोर्स और ही नीड्स टू गेट ट्रेन्ड इनटू समथिंग, ताकि उसका जॉब रोल जो है वो स्विच हो जाए. सो आप वही सवाल कर रही है ना कि आपने कहा वही क्लासरूम ट्रेनिंग आ गई कि इफ आई वांटेड टू बी डेवलप्ड और मैंने कोर्स करना है तो मैं कैसे करूंगा, और ऑर्गेनाइजेशन मुझ में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही है, यही आपका सवाल है. और सही है, बिल्कुल सही सवाल है. देखें, ये आप 10% लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रही हैं. Okay. So the majority of the learning and development and getting an exposure is on while you're working on your job description. All right. That's your 70%. 20% आपकी learning होती है when you work on cross-functional projects within your organization, such as maybe perhaps rotations, maybe CFTs बनती हैं, cross-functional teams बनती है, और 10% होती है वो classroom होती है जिस course की आप बात कर रही हैं. हम as an people in my organization or various organization I've seen that they would only talk about the 10% going out and attending a course and coming back without anything. अब ये तो एक एज ए सिचुएशन है करंट. अब पीछे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो आपके लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम्स बनाने चाहिए, टैलेंट मैनेजमेंट फिलॉसफीज होनी चाहिए, देयर नीड टू बी सर्टेन मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर्स वेयर बाय यू शुड अंडरस्टैंड एंड नो कि हमारा जो है वो हाउ डू आई डिस्टिंग्विश बिटवीन द हाई फ्लायर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, the mediocre people and mediocre and ordinary people. अच्छा, ordinary जो mediocres होंगे वो भी contribute कर रहे होंगे, लेकिन high potentials जो होंगे, जो आपके top talent होंगे organization के अंदर, वो उनको fast track पे जाएंगे. It will be difficult for organization to retain those people, and that those people need to be engaged through these courses, through rotation, through secondment, through fast track promotions or elevations in organization. तो ये टैलेंट मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं और बना रही हैं, और वो कामयाब हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन. मैं आर्म फोर्सेस की एग्जांपल लोगों को इसलिए देता हूँ बिकॉज एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स होती है उनके पास. सो एवरीबडी डज नॉट बिकम अ जनरल और अ ब्रिगेडियर. सो द मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस दे रिटायर एट द लेवल ऑफ मेजर. फिर जो एक सर्टन यूनिट कमांड कर रहे होते हैं वो आपके लेफ्टिनेंट कर्नल के लेवल पे जाते हैं, ब्रिगेडियर के ब्रिगेड कमांड कर रहे होते हैं, एंड देन सो एंड सो फोर्थ. अब सो मेजर के ऊपर आपका जो फनल आता है और आपका जो है वो क्या नाम है, लोगों की कैपेसिटी पे, उनकी कोर्सेज पे, उनकी ट्रेनिंग्स पे, उनकी थिंकिंग की एबिलिटी पे वो आगे जा रहे होते हैं. और कुछ के साथ हो सकता है ज़्यादती भी होती हो, आई एम श्योर हर जगह होती है. कहने का मकसद ये है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमिंग लंबा सा हो गया कि सिस्टम्स इस तरह डेवलप करने चाहिए कि लोगों को जॉब के ऊपर सीखने को ज़्यादा मिले रादर देन द क्लासरूम पे. सो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन इतनी एनरिच्ड होनी चाहिए और मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए. दैट मींस क्लियर टू द एम्प्लॉइज एज वेल. चले वो क्लियर है ना, वो एक अलग बात है, क्लियर बिल्कुल होनी चाहिए. लेकिन वो जॉब जो है वो एचआर मैनेजर रखा, उसको पता है एचआर मैनेजर के 7-8 ये काम मोटे मोटे काम है, फाइनेंस मैनेजर के ये काम है, लेकिन उसकी जॉब रोटेशन वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. सो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड स्टफ, दे व्हाट दे डू दैट दे मूव पीपल आफ्टर 2 to 3 years or 4 years, मैक्सिमम 5 years. एक जगह नहीं बैठने देते. उससे क्या है, मेरी मोटिवेशन आ जाती है. जब मेरी मोटिवेशन आती है तो मैं जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में रहता हूँ और मेरी लर्निंग हो रही है.
All right. My next question to you is in leadership role, ठीक है, empathy का क्या impact होना चाहिए? एम्पैथी का क्या impact होना चाहिए? Empathy कितना जो है वो इस चीज़ के लिए important है? मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकूंगा, बट हम्म। एम्पैथी लीडरशिप का एक हिस्सा है. बट यू कांट बी एम्पैथेटिक ऑल द टाइम बिकॉज रिजल्ट्स भी चाहिए होते हैं. सो एम्पैथी का एक सर्टेन परसेंटेज होनी चाहिए विच मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम. I can't quantify that, but when you are evaluated for certain thing, your empathy should not overwhelm the results, right? So आप empathy भी रखें और लेकिन रिजल्ट्स भी आपके होने चाहिए. सो रिजल्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं. सो इट शुड बी a good combination. Yeah. One question I want to ask you related to empowerment of women, ठीक है, अगर हम financial independence की बात करते हैं, Empowerment of women. empowerment of women से Yeah. related है. When we talk about financial independence, do you think empowerment जो है वो इसकी awareness के बगैर हो सकती है? If yes, then how? अच्छा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से क्या मुराद है आपकी? Like a person has that much awareness of how to spend their money. देखिए, इन दिस ग्लोबल सिनेरियो आई डोंट थिंक सो कि शायद लोगों को अवेयरनेस ना हो. आजकल बहुत से लोग जो है ना, दे जस्ट वांट टू सेव मनी, और कभी कभी ऐसा भी होता है दैट दे आर लाइक कि आज हम स्पेंड कर दें. सो व्हेन दे आर ट्राइंग टू सेव, ठीक है, दे डोंट हैव एन अवेयरनेस व्हाट टू डू विद देम. उसके बगैर एम्पावरमेंट डू यू थिंक क्लैश होती है या? So I was attending an event at one of the largest financial institution. So I think 97% of the women in Pakistan, or more than that, they don't know where to invest and how to go about it. शायद ज़्यादा था, मुझे exactly don't quote me on this figure, but मैंने एक figure, just rough, मतलब it was somewhere in 90s. इसी तरह बैंक अकाउंट्स जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करता. अगर लेट्स से मुझे अपने किसी हाउस वाइफ के लिए अगर अकाउंट आप में से किसी ने खोलना होगा तो अपने मियाँ का लेटर चाहिए होगा. ठीक है. सो ये बैंक्स नीड्स टू चेंज देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसी तरह जो है वो अवेयरनेस आउटरीच इज़ इम्पॉर्टेंट. आपके गली मोहल्लों तक रसाई होनी चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, और इस फोरम की जो आज यहाँ पर हो रहा है, rather than sitting in a Movenpick and having a discussion with group of women जो कि ये फोरम पे बार बार नज़र आ रही होती है और मर्द भी नज़र आ रहे होते हैं सेम लोग, इनके बजाय then we need to go to those areas, the real areas dig out what they want. Exactly. उनको एजुकेशन देना ज़रूरी है, उनको वेरियस अवेयरनेस फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी देना ज़रूरी है. कि आप देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर नहीं है और फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, especially financial awareness, so that will leads to a chaotic situation, a crisis situation. Investing into certain elements and getting a return out of it, and then going to the work and how to save the money and how to spend the money and where to spend the money. ये बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते. So अल्लाह ताला ने ख़वातीन को एक दिया हुआ है कि वो अगर उनको पता हो तो वो अच्छा कर सकती हैं, उसके बगैर भी अच्छा कर रही होती हैं काम. बट आई थिंक I don't have answer to that because हमें आउटरीच की लोगों को जाके समझाना पड़ेगा. बिल्कुल. One another question that I had in my mind was, if we talk about financial inclusion, कभी कभी ऐसा भी होता है that you don't have access to opportunities, and at times ऐसा भी होता है you just need a very nice kind of a very sharp kind of a mindset in order to move forward. तो आपकी नज़र में whether it's the mindset or whether it's the access to opportunities or both? देखिए, माइंडसेट भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी है. माइंडसेट इसलिए ज़्यादा उसको मैं यहाँ पर वेटेज दूंगा बिकॉज अगर लेट्स से आपको टिकटॉक अगर बनाना आता है और आप यू स्पेंड लाइक 4-5 hours in a day यूजिंग योर टिकटॉक एंड सोशल मीडिया, तो किसी और पे काम पे लगा लें, राइट? सो एज अ कॉम हमारे अंदर लथार्जी भी है. एज ए कॉम हमारे अंदर जो है वो हम शायद उतने प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड लुकिंग शायद नहीं रहे हुए जितना शायद कुछ हम सालों पहले हुआ करते थे. अब आगे का पता नहीं.
Is it perhaps it could be because of our political and economical situation, बिल्कुल बट मैं ये नहीं समझता कि हमारी एक गांव देहात की औरत भी अगर वो टिकटॉक बना रही है सो अपना वो दिमाग किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर ले, और ये मर्दों के लिए भी है, सो देयर एक्सेंट पीपल इन there's a टर्म्स ऑफ lack of education, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को अगर थोड़ा सा कम करने का सोचते भी हैं तो द वेरी मेजर पार्ट कम्स ओवर हियर इज द education. If they have the education, then they will be able to make better decisions. कोई शक नहीं है इस पे स्कूल जाना, कम से कम मिडिल या प्राइमरी एजुकेशन एक लेना, शऊर आ जाता है ना आपके अंदर when you शौक have भी नहीं the है ना, हाँ? शौक नहीं है भाई, शौक नहीं है ना, ये क्योंकि अगर माइंड सेट पे आ जाता हाँ है शौक यार। नहीं, और शौक पैदा करना हमें एक्सेस देनी पड़ेगी, हमें बिल्कुल हमें अपने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें लोगों को अपने मसाजिद को हमें इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ even women going to the masajid. If absolutely wonderful thing, yeah. Our masajids are not inclusive. Why? Because if मेरी एक लड़की अगर let's say एक लांडी से निकलती है और वो 4 बसें चेंज करके आती है, तो उसको रास्ते में अगर उसने कोई चाय पीनी है या उसने रेस्ट रूम इस्तेमाल करना है तो उसके पास कोई कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। Structure नहीं है। दुनिया में ये मसाजिद काम देती हैं आपके लिए, सो ख़वातीन का एरियाज होने चाहिए, आपके बस स्टॉप्स इंक्लूसिव होने चाहिए। सो हम तो औरत को तो मस्जिद में घुसने नहीं देते, राइट? जो कि दुनिया में मैंने जैसे कहा कि तलवार लगा के रूल करती रही हैं। सो फाइन, ये these reforms needs to be brought into the system. One last question I want to ask you is someone who's trying to become a leader near future में, ठीक है, तो उनके लिए कोई एक message which you would like to give? I have nobody to give a message, frankly speaking. Just I don't what is know. that one mindset or one habit that they can change or that they can learn which will help them in future? वो कहते हैं दरख्त जितना फलदार होता है उतना आप झुकता है। अपनी एग्जाम्पल से जो है वो कर सकते हैं। So I am not maybe perhaps a success story, but again दरख्त जैसे मैंने कहा जितना फलदार होता है उतना झुकता है। So humiliation is important. वो कहते हैं ना कि फाख्ता की तरह बेज़रर हो जाओ लेकिन सांप की तरह चौकन्ना रहो। So people should Mental know, alertness। हाँ मेंटल अलर्टनेस भी है। सो जो फाख्ता होती है वो बड़ी शरीफ सी बर्ड होती है, लेकिन सांप जो होता है वो बड़ा राइट लेफ्ट उसका चल रहा होता है। सो आपको पता भी होना, दोनों आपके पास एस्पेक्ट्स होने चाहिए। व्हेन रिक्वायर्ड दैट यू कैन यूज व्हाट टूल्स यू कैन डू, यू शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड वन, एंड पॉजिटिव गिरे, रेजिलियंस, झाड़ो खड़े हो, चलो फिर निकल जाओ। Resilience is the word that will stay with me because it's really very very important and yes, for grant नहीं लेना चाहिए चीज़ों को। Thank you so much for this insight. I've learned a lot from you. Thank you so much for being with us. जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।